Hello everyone, good morning. I hope you're doing well. Uh, we might be encountering each other after a long time. I was on a vacation and I'll be taking your physics lessons henceforth. Okay, so today we'll start with our chapter called as Law of Motions. Okay, before writing the chapter's name, even I would like to discuss something about Sir Isaac Newton. Okay, तो न्यूटन के बारे में सबको पता ही है नो ये फेमस स्टोरी उनकी कि एन एप्पल फेल ऑन हिज हेड एंड ही डिस्कवर्ड ग्रेविटेशन है ना। तो थोड़ा सा एक क्या कहते हैं बिफोर वी जंप इनटू दी सब्जेक्ट थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं और आप लोग सुनो कि द लाइफ ऑफ आइजैक न्यूटन। ठीक है। न्यूटन ये एक इंग्लिश फैमिली में इनका बर्थ हुआ था in England, Lincolnshire में, and his mother was widowed when he was just 3 years old. Then she remarried, and then again she was widowed. Then she remarried. When like, Newton studied in a basic school up to 17 years of age, जहाँ पे उनको बहुत बेसिक लैंग्वेजेस और सोशोलॉजी वगैरह पढ़ाया जाता था, बहुत ही बेसिक मैथमेटिक्स जिसका कोई यूज ही नहीं था, ऐसा कुछ पढ़े वो। एंड देन he went to it in a university to take his proper education and degree, and to our surprise Newton was a graduate in arts। ठीक है, उनके पास बैचलर ऑफ आर्ट्स की ग्रेजुएशन डिग्री थी। ओके, एंड देन ही प्रोसीडेड for his masters in arts। Okay, and he studied further and did his PhD in it। So Newton has given the world, he has rewarded the world with some exquisite discoveries। हर फील्ड में आप देखोगे, मैथमेटिक्स में, फिजिक्स में, इंजीनियरिंग में, हर जगह पे न्यूटन हैज टच्ड एंड given gifts of theories in that। Some people might not consider it gifts but a burden, लेकिन he has made things a lot easy for engineers with some of his formulas and things। Okay, and to start with the chapter, I would like to tell you कि आप see this chapter in the vision of Newton। See, Newton when he was a kid, he was forced to become a farmer by his mother, और उनको बनना नहीं था किसान। तो in that situation he rebelled and he started studying and became a scientist। Okay, so these what we are going to study, these are the thoughts of a rebellious kid when he discovered what is gravitation। He figured out when he was a kid, although he published it later, but he was a kid when he discovered this। Okay, so we are going to study today laws of motion। So this is your chapter 4। Okay, so we'll start with a bit of recap कि आप अभी तक आपने ये पढ़ा होगा, but these basics are necessary। First we'll start with what is force। Okay, and in this context, ये chapter के context में we are going to study basically contact force। Okay, इसकी definition हम लिखेंगे, पहले देखते हैं types of forces क्या है। So types of forces। Okay, so basically I can classify it into non-contact force, then contact force, then weak force I can say, and then we have fourth one, न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है, तो ये चार बेसिकली हम वी कैन क्लासिफाई फोर्स इनटू दीज 4 कैटेगरीज। ओके, तो देखते हैं इनमें थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन भी देख लेते हैं इनका। देखो, नॉन कांटेक्ट फोर्स में कौन से आते हैं। इलेक्ट्रिक फोर्स आता है,
Then we have magnetic force, okay, and also we have gravitational force, right? तो basically ये क्या है? Non-contact force means it attracts or repels from a distance, okay? So attracts or repels from a distance, ठीक है? You can make notes while seeing the while seeing what I'm writing, okay? Or I can just you can pause the video and make notes also, या फिर मैं भी आपको थोड़ा सा I can give you 10 seconds 15 seconds while explaining stuff to write your notes, okay? और contact force क्या होते हैं? Contact force देखो, पहले तो pulling force यानी tension force लिख लेते हैं, okay? फिर होते हैं pushing force, या फिर I'll simply write applied force, okay? Then there is normal force, normal reaction जो होती है. Then there is spring force, okay? Then there is frictional force, and there's also something known as drag force, okay? Most of them, इनमें से आपने ज़्यादातर force सुने नहीं होंगे, no problem, but I can write in summary that these forces are between objects that touch, okay? So they are between objects that touch, ठीक है? और वीक फोर्स मतलब कौन से होते हैं? जो कि इंटरमोलिकुलर फोर्स होते हैं. आपने केमिस्ट्री में पढ़ा है, नहीं पढ़ा है मुझे पता नहीं. वैन डर वाल्स फोर्सेस होते हैं, ओके? सो दीज आर वीक फोर्स. न्यूक्लियर फोर्स मतलब जो कि एक न्यूक्लियस में होते हैं, विच कीप्स द न्यूक्लियस टुगेदर, है ना? जो कि प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स जो भी न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, राइट? So which keeps the nucleus together. This is actually the strongest force in nature, okay? I'll just write this in red. It's very important point. This is the strongest force in nature, okay? You can see जब भी nuclear fission reaction होता है, a lot of energy is emitted when a big nucleus is broken down into two small nucleus, okay? And there is lot of energy, बहुत सारी energy emit होती है, okay? So from this we can make out कि there is lot of energy, lot of force in which takes to bind the nucleus, okay? So in this chapter we are not going to study about the non-contact force, weak force or nuclear force. We are just going to see contact forces, okay? वो भी सब forces नहीं पढ़ेंगे, जो भी बनता है chapter में उतने ही पढ़ेंगे, okay? So we'll write the definition of contact force over here, ठीक है? So it is basically an external effort in the form of pull or push, okay? In the form of pull or push that changes or tends to change the state of rest or motion or direction or dimension of a body, okay? Let me just write it, then I'll explain the whole definition to you, okay? That changes or tends to change the state of rest
or of motion or direction or dimension of a body. ओके, तो अभी देखो क्या कह रहा है ये. इट इज एन एक्सटर्नल एफर्ट. ओके, so this is well understood in the form of pull or push. Okay, क्योंकि contact force है that changes or tends to change. देखो हर बार ऐसे नहीं होगा कि कोई tangible effect होगा ही force का. If you're pushing a wall, you know the wall may not move, so it may tend to change. Okay, that changes or tends to change the state of rest. Okay, अगर rest में है और अपने force लगा दिया तो motion में आ जाएगी. अगर motion में है अपने force लगा दिया तो it can come to rest. Okay, or direction. Okay, it can change the direction also. Just like a football is coming to you, you kick the ball, you know, you're changing its direction of motion, right? Or dimension of a body, right? You can squeeze something using force, right? You can extend a rubber band using force. So you're just changing the dimension to it. Okay, so this is the definition of force. Okay, now we'll see what is inertia. Second thing, inertia. You might have studied this in your ninth class. Okay, it is inability of body to change its state of rest or of uniform motion. Okay, so inertia is the inability of body to change its state of rest or of uniform motion. ओके, तो बेसिकली क्या है, देखो आप अगर एक कार में जा रहे हो, ओके, दिस इज अ कार एंड यू आर सिटिंग हियर राइट एट द बैक. ठीक है, तो कार में जा रहे हो और कार अचानक से यू नो इट ब्रेक्स. ब्रेक्स मतलब BRAKES. ओके, रुक जाती है कार अचानक से. ओके, सो नाउ दिस इज मूविंग एंड इट सडनली ब्रेक्स ऑफ. तो आपका क्या रिएक्शन होगा इस पे, यू नो योर बॉडी विल टेंड टू गो फॉरवर्ड. ओके, है ना, आप गिर जाओगे आगे जाके इफ इट इज यू नो सडनली स्टॉप्ड. देयर इज अ वॉल हियर एंड इफ द कार डैशेस इनटू इट तो आप क्या करोगे, अब आके जाके गिरोगे. व्हाई? बिकॉज योर बॉडी इज यू नो इट्स इन मोशन. कोई स्पीड है, कोई वेलोसिटी से जा रही है, सो इट विल वांट टू यू नो बी इन दैट स्टेट ऑफ मोशन. सो उसका इनएबिलिटी है टू चेंज इट्स मोशन. ओके, सिमिलरली if the car is at rest, okay, if this car is initially at rest और आप बैठे हो यहाँ पे, right? So if the car is initially at rest, VO is equal to 0 meters per second. Okay, and it suddenly is pushed forward, right? V final is suddenly 10 meters per second. So what will happen? You'll be forced back, right? Right? So this is the inability of body to change its state of rest. Okay, so this is inertia. तो ये objects को भी होता है. Okay, so if there is a mass of you know some mass m, तो mass में भी दिखाई देता है आपको. कोई भी mass ले लो, कोई भी object ले लो. So for matter it has this you know virtue of inertia. Okay, so I hope you have understood it. आपने बहुत पहले किया भी होगा, since 9th standard you are seeing this. Okay, तो सबको पता ही होगा.
One more thing we are going to see is momentum, or if I, in the right context, it should be said as linear momentum. एक angular momentum भी होता है, but we'll stick to linear now. Okay. So what is momentum? It is the product of mass of the body and its velocity, right? So momentum p है, इसे लिखते हैं p momentum को. It is the product of mass and its velocity, which is direction. So it is the product of mass of a body and its velocity. ओके तो बेसिकली क्या है, ये तो उसका फॉर्मूला हो गया, राइट? P इज इक्वल्स टू mv. लेकिन मोमेंटम मतलब क्या है? किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट की औकात, ठीक है? तो औकात कैसे पता चलती है? कितना वजनदार है वो, कितना मास है और क्या स्पीड से ट्रेवल कर रहा है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो एक मूविंग ऑब्जेक्ट की यू नो औकात होती है, मोमेंटम. ओके, वी से दैट the batsman is gaining momentum, or we say the car is gaining momentum. So it is nothing but औकात of the body which is in motion. Okay. Okay, so let us go towards motion now. ठीक है, हम देखते हैं कि मोशन क्या होता है. मोशन का तो मीनिंग सबको पता है कि if an object continuously changes position, it is said to be in motion, right? If an object continuously changes position, it is said to be in motion. ठीक है, अभी मोशन क्या होता है ना, we study motion in two different scenarios. Okay, तो पहले तो होता है स्टैटिक्स, दूसरा होता है काइनेटिक्स. ओके, बेसिकली वी आर नाउ एंटरिंग इनटू मैकेनिक्स. ओके, मैकेनिक्स करके एक ब्रांच होती है फिजिक्स की, which is nothing but study of motion. Okay, so motion can be studied in two ways. फर्स्ट ऑफ ऑल स्टैटिक्स है, दूसरा है काइनेटिक्स. ठीक है, स्टैटिक्स मतलब क्या? स्टैटिक्स मतलब होता है when we deal with objects which are at rest. ठीक है, तो at rest, ठीक है, जिसमें कि there is equilibrium and balanced forces. तो मैं दो चीजें लिखता हूँ कि forces balanced है and the object is at rest. काइनेटिक्स में क्या है? काइनेटिक्स में एक्चुअल मोशन. ठीक है, when object is in actual motion. ठीक है, this is further divided into two parts. Okay, this kinetics is further divided into kinematics and the other part is dynamics. ठीक है, तो अभी काइनेमैटिक्स क्या होता है? काइनेमैटिक्स होता है कि when we are not concerned about the cause of motion. ठीक है, तो मोशन तो हो रहा है, तो हम लोग उसमें देखेंगे कि डिस्प्लेसमेंट क्या है या फिर डिस्टेंस क्या है, फिर उसका वेलोसिटी क्या है, we'll consider this. उसका एक्सेलरेशन क्या है, we'll also consider this. Okay, but उसका कॉज क्या है, we are not going to consider that.
ओके, मोशन का कॉज क्या है? बेसिकली मोशन का कॉज फोर्स ही होता है, सो वी आर नॉट गोइंग टू take force into our calculations. Okay, in dynamics we are going to consider all of this. Okay, displacement, distance, velocity, फिर क्या होता है अपना, होता है acceleration, ठीक है, और cause भी, ठीक है, cause मतलब क्या, force, ठीक है, ये भी हम कंसिडर करेंगे कैलकुलेशन। तो बेसिकली इन ब्रीफ, यू नो, motion is divided into statics, kinetics. Kinetics is divided into kinematics and dynamics. आपने काइनेमेटिक 3 इक्वेशंस ऑफ काइनेमेटिक्स देखे होंगे आपके 9th-10th क्लास में, राइट? डायनेमिक्स पार्ट नहीं देखा होगा, सो विल लुक इनटू दैट टू, ठीक है। सो बेसिकली आपको अभी मोशन का तो क्लासिफिकेशन पता चल गया है। देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ मोशंस। लीनियर मोशन होता है, आपको पता है लीनियर मोशन क्या होता है ना? जस्ट राइट इट, लीनियर मोशन होता है, फिर होता है सर्कुलर मोशन, राइट, फिर होता है पैराबोलिक मोशन। ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशंस है, ओके। तो लीनियर मोशन में क्या होता है, देखो इनिशियल वेलोसिटी मे बी जीरो और नॉन जीरो, राइट? नाउ इफ द इनिशियल वेलोसिटी इज जीरो, acceleration in any direction will result into linear motion, okay? So if this is a point I just write, चलो एक बार लिख ही लेते हैं इनका definitions, ताकि you can note it down, let's write in black ink itself, okay? So initial velocity may be zero or non-zero, and second part is if vi, जो कि initial velocity, is zero, then acceleration in any direction will result in linear motion, ठीक है, ओके। सो बहुत सिंपल है, देखो ये एक ऑब्जेक्ट है, इसका मास है m समझ लो, और इसकी वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी है जीरो, ठीक है, वी आई लिख लेते हैं, इसकी इनिशियल वेलोसिटी है जीरो, मतलब कि ये एट रेस्ट है। तो अभी इसको एक्सेलरेशन दे दो किसी भी डायरेक्शन में, ओके, इट इज गोइंग टू फॉलो अ लीनियर मोशन, ओके, किसी भी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन दे दो, इट इज गोइंग टू फॉलो अ लीनियर मोशन। सो कोई x होगी इसकी फाइनल वेलोसिटी, ओके। सो द सेकंड टाइप ऑफ मोशन इज, एज आई सेड, इज सर्कुलर मोशन। अभी सर्कुलर मोशन क्या होता है कि if the initial velocity is not zero, okay, and acceleration throughout is perpendicular to the velocity, okay, then the resultant motion will be circular, okay. So if the initial velocity is not equal to zero, okay, and the acceleration throughout the motion is perpendicular to the velocity, okay, the resultant motion will be circular. The resultant motion will be circular, okay. अब इसका क्या मतलब हुआ, देखो ये कोई भी ऑब्जेक्ट है, ओके, जिसका मास m पकड़ लो, ओके, और इसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो नहीं है, मतलब कुछ वेलोसिटी से ये ट्रैवल कर रहा है, ठीक है।
मान लो कि ये इस डायरेक्शन में ट्रैवल करता है, ठीक है, बट नाउ इफ यू सी द एक्सेलरेशन इज एग्जैक्टली initial velocity is something, let's take it as x, okay, acceleration is in the perpendicular direction, okay, तो इनिशियल एक्सेलरेशन है y, समझो कि ये इस डायरेक्शन में, तो क्या होगा देखो, सो इट विल मूव इन दिस फैशन, ओके, आई एम सॉरी नॉट इन दिस डायरेक्शन, सर्कल कैसे बनेगा देखो, इन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी वेयर एक्सेलरेशन इज टुवर्ड्स द सेंटर, तो ऐसे कुछ मोशन होगा, ओके, सर्कुलर फैशन में, ओके, टुवर्ड्स द सेंटर, द एक्सेलरेशन कम्स टुवर्ड्स द सेंटर और इस फैशन में मोशन होगा, ओके, सो इट विल pursue a circular motion, and the third one is the parabolic motion. Parabolic motion, तो इसमें क्या होता है, like if the acceleration is constant, ठीक है, and initial velocity is not in line with the acceleration, the motion is parabolic motion, okay, तो ये थोड़ा simpler version of circular motion है, so what they are saying, if acceleration is constant, ठीक है, and velocity is not in line with acceleration, okay, then the trajectory is called parabolic motion, then simply लिखते हैं, then the motion is called parabolic motion. अब देखो, अभी ये पार्टिकल है सपोज, इसका मास है m, ठीक है, इसकी वेलोसिटी है मान लो इन दिस डायरेक्शन, और इसका एक्सेलरेशन है इन दिस डायरेक्शन, ओके, तो इसका क्या अभी प्रोजेक्टाइल होगा, इट विल बी लाइक दिस, ओके, समथिंग लाइक अ पैराबोला. नाउ इफ सपोज कि ये दोनों में जो एंगल है, ये एंगल, इफ दिस इज 90 डिग्री, इट वुड हैव यू नो pursued a circular motion, ठीक है, लेकिन अभी parabolic motion है, right, so it is simple to understand. So these are types of motions, okay, this is classification for analysis of motion, statics, kinetics, kinematics, dynamics, और ये कुछ type of motions, ठीक है, ठीक है, तो अभी तक हमने क्या क्या देखा, लेट्स डू अ क्विक रिकैप. हमने न्यूटन की कुछ पर्सनल लाइफ के बारे में सीखा, then we just went into, अभी तक हमने ये सब recap ही है, okay, this is just basics which you must know before starting the chapter. हम लोग ने अभी तक chapter शुरू भी नहीं किया है, okay, so we saw what is force, ठीक है, types of forces देखे हमने, okay, 4 type of forces, contact, नॉन कॉन्टैक्ट, वीक फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स, जिसमें न्यूक्लियर फोर्स सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है. याद रखना ये एमसीक्यू भी आ सकता है, विच इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन नेचर, ओके, सो इट इज न्यूक्लियर फोर्स, राइट. देन वी सॉ व्हाट इज इनर्शिया, हमने एक एग्जांपल देखा, ओके. देन वी सॉ व्हाट इज मोमेंटम, मोमेंटम क्या होता है, किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट की औकात होती है, ठीक है, और उसका फॉर्मूला होता है mv, ओके, और उसको रिप्रेजेंट, मोमेंटम को रिप्रेजेंट करते हैं विद द लेटर p, ओके, एंड इट इज अ वेक्टर, क्योंकि इसमें v भी एक, वेलोसिटी भी एक वेक्टर है, ठीक है. फिर हम लोग आए मोशन पे, ओके. So what is a motion? If an object is continuously changing its position, then it is said to be in motion, ठीक है. फिर हमने मोशन के जो स्टडी है उसका क्लासिफिकेशन देखा. So it can be classified as statics and kinetics, ठीक है. और स्टैटिक्स होता है कि अगर कोई बॉडी रेस्ट पे हो और उसके मोशन को स्टडी किया जाए, then it is called as statics. And if the body is in motion, actual motion, it is called as kinetics. Kinetics can be divided into two further parts. देखो, ये बस एनालिसिस इजी करने के लिए हम लोग यहाँ पे
काइनेमैटिक्स में फोर्स कंसिडर नहीं करते, जस्ट टू मेक द एनालिसिस मोर इजियर, ठीक है। बट इन डायनेमिक्स वी कंसिडर कैलकुलेशंस ऑफ फोर्स टू, ठीक है। देन वी सॉ थ्री टाइप्स ऑफ मोशंस, ठीक है। लीनियर मोशन होता है, हमने देखा, डेफिनेशन पढ़ा और समझा भी। देन वी सॉ व्हाट इज सर्कुलर मोशन, ठीक है। देन वी सॉ व्हाट इज पैराबोलिक मोशन, ओके। सो नाउ मूविंग ऑन, we'll see something what is called as Aristotle's fallacy, okay। तो चलो अभी देखते हैं Aristotle's fallacy, ठीक है। Aristotle's fallacy, ठीक है। तो एरिस्टोटल कौन था? आपने सुना होगा अलेक्जेंडर द ग्रेट, ठीक है। तो अलेक्जेंडर द ग्रेट के एरिस्टोटल थे काउंसलर, ओके। जैसे कोई किंग होते थे तो इनके पास हमेशा कोई गाइडेंस के लिए कोई स्कॉलर्स होते थे, है ना, इंटेलेक्चुअल पर्सनालिटीज होते थे, मेंबर्स होते थे इन द पार्लियामेंट। तो उनको संस्कृत में नॉर्मली बोला जाता है गुरु ऑफ द किंग, ठीक है। तो एरिस्टोटल अलेक्जेंडर के गुरु थे, ठीक है। ये एरिस्टोटल का और एक आपने नाम सुना होगा इनके रेफरेंस में कि सोक्रेटिस जो थे, ठीक है, इनके स्टूडेंट थे प्लाटो और इनके स्टूडेंट थे एरिस्टोटल, ओके। तो मैं ये क्यों बता रहा हूँ, वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड, वी आर गोइंग टूवर्ड्स न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। तो अभी इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशंस, तो हमें पता करना जरूरी है कि हिस्ट्री में मोशन पे किसने किसने कमेंट किया, क्या क्या उनके फिलोसफीज थे, ठीक है। जैसे अगर आपने सुना होगा आइंस्टाइन ने प्रूव किया था E इक्वल्स टू mc स्क्वायर। टू अंडरस्टैंड दिस यू हैव टू गो इनटू द हिस्ट्री की एनर्जी को E किसने फाइंड आउट किया, मास कंजर्व होता है ये किसने फाइंड आउट किया, ये स्पीड ऑफ लाइट जो है ना, ये पहले किसने डिस्कवर किया। बिकॉज ऐसे नहीं होता है कि कोई साइंटिस्ट अचानक एक दिन उसे कुछ सपना आता है, सुबह उठ के वो कॉइन कर देता है E इज इक्वल टू mc स्क्वायर और जर्नल में पब्लिश कर देता है, ऐसे कभी नहीं होता। देर इज ऑलवेज अ बैकग्राउंड टू इट, ओके। सो देर इज बैकग्राउंड ऑफ रिसर्चेस, मैनी रिसर्चेस। तो वो बहुत सारा लिटरेचर सर्वे करते हैं, बहुत सारे पेपर्स पढ़ते हैं, फिर उनको एक आइडिया शूट होता है, ओके। सो आइडिया के लिए बिल, फिर एक आइडिया शूट होता है, फिर लिटरेचर सर्वे करते हैं, फिर एक आइडिया शूट होता है, फिर बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, चैलेंजेस आते हैं उस आइडिया में, ठीक है। और फिर वो बहुत सारे अदर सीनियर साइंटिस्ट से उस प्रॉब्लम्स और चैलेंजेस को सॉल्व करने के लिए उनके इक्वेशंस पढ़ते हैं और फिर जाके कहीं उनका इन्वेंशन होता है या डिस्कवरी होती है, ओके। तो ऐसे कभी नहीं होगा, आपने देखा होगा कि कोई बड़ा सा फॉर्मूला है अचानक से एक दिन में आ गया, ठीक है। देयर इज ऑलवेज अ बैकग्राउंड टू इट, जैसे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का बैकग्राउंड स्टडी अभी हम कर रहे हैं। सो दिस इज लॉन्ग बैक, इन द टाइम्स ऑफ अलेक्जेंडर, जब एरिस्टोटल थे, उन्होंने एक कमेंट किया था अबाउट द मोशन। सो वील लुक इनटू दैट, ओके। एंड फ्रॉम देयर वील सी, we'll go up to Newton's laws of motion, okay। So now I want you to be very attentive। आपको मैं दिखाना चाहता हूँ कि फिजिक्स के हिस्ट्री में थियरीज कैसे इवॉल्व हुए हैं, ओके। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू फोकस एंड लर्न हाउ द थियरीज, वन बाय वन कैसे थियरीज आते हैं और कैसे दूसरे साइंटिस्ट आके थियरीज को फैलेसी डिक्लेयर करते हैं और अपनी थियरी पुट फोर्थ करते हैं, फिर दूसरा साइंटिस्ट आता है अपनी थियरी पुट फोर्थ करके प्रीवियस साइंटिस्ट की थियरी फैलेसी डिक्लेयर करता है, और ऐसे साइंस आगे बढ़ता है, ओके। सो नाउ just be very attentive how the subject matter develops, okay। तो एरिस्टोटल क्या कहे, एरिस्टोटल ने कहा कि सिंपल चीज है सर, उन्होंने कहा an external force is required to keep a body in uniform motion, okay। So he said an external force is required to keep a body in uniform
motion. Okay, so in essence what he wanted to say was every body has its natural what we say tendency to be in rest. ठीक है, ये कोई मास है अगर है तो इसका natural way है that it wants to be in rest. Now if you want to keep it moving you have to apply force. This is what he is trying to say. तो इनका मतलब ये है कि अगर ये कोई बॉल है और ये कोई सरफेस है मान लो, ठीक है, तो बॉल हमेशा रेस्ट पे रहेगा अगर इसको पुश ना किया जाए. एंड टू कीप इट मूविंग वील हैव टू कीप ऑन अप्लाइंग कंटिन्यूस फोर्स. ओके, सो this theory is kind of it is sensible but it is not complete. Okay, बाद में गैलीलियो साहब जो आए, उनकी स्पेलिंग क्या है गैलीलियो, लेट मी जस्ट कंफर्म इट. या गैलीलियो, सिंपल सी स्पेलिंग है. ओके, सो गैलीलियो साहब ने क्या कहा कि नहीं सर ऐसा नहीं है, आपकी जो थियरी है दैट इज इनकम्प्लीट. इट इज नॉट that the mass is always trying to be in rest. The thing is, a ball when thrown on a free surface, it comes to rest because of the resistive forces offered by the nature. ठीक है, मतलब यहाँ पे उसको कुछ फ्रिक्शन लगेगा, है ना, कुछ एयर रेजिस्टेंस होगा, राइट, तो उसके वजह से इट कम्स टू रेस्ट. सो यहाँ पे कुछ v1 है और यहाँ पे v0 है, वेलोसिटी 0 है. ओके, so it comes to rest because of the external forces applied on it, and it is not that the body always goes towards the position of being in rest. Okay, it's not the nature of the body to be in always rest, but it is due to nature कि वो रेस्ट में आ जाती है. Okay, I'll give you an example, things will be more clear. I know it must be थोड़ा सा confusing हो रहा है, but no, understanding the further example will clear things out. ठीक है, मान लो अभी ये एक सरफेस है, ओके, और ये एक बॉल है और ये आपके घर का स्पार्टेक्स फ्लोर है, तो इसके लिए मैं इसको x डिनोट कर रहा हूँ. ठीक है, स्मूथ सरफेस है, तो बॉल को आपने कुछ फोर्स दिया यहाँ से, मान लो x फोर्स दिया, बॉल आके यहाँ पे रुक गई. ठीक है, तो ये डिस्टेंस मान लो एट 10 मीटर्स. ओके, जस्ट मान लो, ओके, हाइपोथेटिकल. अभी आप लोग गए आपके घर के बाहर, ठीक है, और बॉल वापस रख दी एक कंक्रीट फ्लोर पे, जो आपका सीमेंटेड पेवमेंट होता है बिल्डिंग में, उस पे रख. तो मैं यहाँ पे CC कर लेता हूँ क्योंकि सीमेंटेड पेवमेंट. ठीक है, तो यहाँ से आपने फोर्स दिया, सेम फोर्स x, तो बॉल कहाँ रुकी, मान लो यहाँ रुकी, ये डिस्टेंस है मान लो 8 मीटर्स पे. ठीक है, फिर आप वो सेम बॉल लेके गए एक व्हाट कैन आई से, एक गांव के रास्ते में. ठीक है, कच्चा रास्ता है, तो उसको हम लोग U करके डिनोट करते हैं क्योंकि उसमें बहुत सारे गड्ढे होते हैं. ठीक है, इट इज नॉट गुड सरफेस, बहुत सारा रबल मिट्टी वगैरह सब कुछ होता है, और आपने यहाँ से बॉल रिलीज कर दी, बॉल आके रुकी यहाँ पे, ये डिस्टेंस है मान लो 5 मीटर. ठीक है, ऐसे होगा राइट, बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन, सेम फोर्स अप्लाई की अपने तीनों से. व्हाई इट इज हैपनिंग, यू सी, यहाँ पे फ्रिक्शन जो है ना, फ्रिक्शन जो है यहाँ पे बहुत कम है कंपेरेटिवली. यहाँ पे फ्रिक्शन थोड़ा सा ज्यादा है, राइट, और यहाँ पे फ्रिक्शन जो है, आई एम सॉरी ये साइन थोड़ी, यहाँ पे फ्रिक्शन ज्यादा है और यहाँ पे फ्रिक्शन जो है इस सरफेस पे और ज्यादा है, राइट. इसके लिए 2 एरोस कर रहा हूँ. अभी मान लो आप ले जाते हो इसको एक सी बीच पे, ठीक है, सेम बॉल है और आपने फोर्स लगाया है सेम फोर्स x. इस सी बीच को डिनोट करेंगे हम लोग विद सर्कल्स क्योंकि सैंड पार्टिकल्स होते हैं. ओके, तो इस पे फ्रिक्शन जो होता है ना, इट इज वे टू हाई कंपेयर टू अदर्स. ओके, तो बहुत ज्यादा फ्रिक्शन होता है. ठीक है, तो बॉल यहाँ तक ही मूव करेगी, ज्यादा हिलेगी भी नहीं. ठीक है, शायद 2 मीटर से भी कम हिलेगी ही नहीं बॉल सेम फोर्स.
ठीक है। तो अभी आप देख लो, दिस इज एन एग्जाम्पल विच गैलीलियो प्रपोज्ड, मतलब एग्जैक्टली सेम नहीं बट सिमिलर एग्जाम्पल। व्हाट ही इज ट्राइंग टू से इज कि मान लो अभी यू नो इफ वी गो फ्रॉम दिस वे, यहाँ से अगर ऐसे आप एग्जाम्पल को इंडक्ट करते हो, ठीक है, अभी यहाँ पे फ्रिक्शन जो है बहुत ज्यादा है इसलिए बॉल इट डिडंट ट्रैवल मच। यहाँ पे फ्रिक्शन थोड़ा कम हो गया तो डिस्टेंस भी ज्यादा हो गया। यहाँ पे फ्रिक्शन और कम हो गया तो डिस्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ गया। यहाँ पे फ्रिक्शन बहुत ही कम है तो इसने मैक्सिमम डिस्टेंस कवर कर लिया। मान लो मैं ऐसा एक सरफेस बनाता हूँ जिसमें कोई भी फ्रिक्शन नहीं हो, मैं यहाँ पे खाली छोड़ देता हूँ, कोई साइन नहीं बना रहा हूँ, कोई फ्रिक्शन नहीं है, ठीक है, सिर्फ यहाँ एक डॉट बनाता हूँ, ओके, ये सरफेस है ये डिनोट करने के लिए, इसके ऊपर एक बॉल रखता हूँ और इसको सेम पुश देता हूँ x। मान लो इस पे कोई भी फ्रिक्शन नहीं है, ओके, तो बॉल क्या करेगी, बॉल चलती रहेगी चलती रहेगी चलती रहेगी, रुकेगी ही नहीं। सो इट वॉज नॉट बिकॉज ऑफ द वर्च्यू ऑफ द बॉल कि वो रुक रही थी, खुद के वजह से नहीं रुक रही थी। इट इज नॉट द बॉल्स नेचर टू बी इन रेस्ट, इट इज बिकॉज ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय इट्स सराउंडिंग that it was coming to rest. Okay, this is what Galileo was trying to prove. Okay, hope you are understanding. Okay, अगर आपको नहीं समझा ये चीज तो यू कैन जस्ट मैसेज मी, लेकिन बहुत इजी कंसेप्ट है। देखो वापस एक बार पूरा कंसेप्ट बताता हूँ। देखो अगर फ्रिक्शन बहुत ज्यादा है सरफेस पे, देखो एरिस्टोटल क्या कह रहे थे, बॉल क्यों रुक रही है, बिकॉज ऑफ द बॉल, बॉल की वजह से ही रुक रही है क्योंकि उसका नेचर है रेस्ट में रहना। लेकिन गैलीलियो ने कहा नहीं सर, इट इज नॉट बॉल्स नेचर टू स्टॉप, इट इज बिकॉज ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द सराउंडिंग दैट इट इज स्टॉपिंग। ठीक है, तो मतलब उसने कैसे प्रूव किया, ये इंडक्टिव मेथड से प्रूव किया कि बॉल अगर फ्रिक्शन ज्यादा है तो कम डिस्टेंस ट्रैवल करेगी, जितना फ्रिक्शन कम होता जाएगा बॉल उतनी डिस्टेंस ज्यादा ट्रैवल करेगी। और अगर हाइपोथेटिकली एक ऐसा सरफेस लिया जाए कि जिसपे कोई फ्रिक्शन नहीं हो तो बॉल चलती रहेगी, है ना। तो बॉल का ऐसा कोई नेचर नहीं दैट इट वांट्स टू बी एट रेस्ट। सो दिस इज हाउ एरिस्टोटल्स थियरी was proved to be false. Okay, so this was the base for Newton to come up with his laws of motion. Okay, base क्या था कि ये जो फंडा है of Galileo कि ball it comes to rest not because of its own virtue but because of the external forces applied on it. Okay, तो इस फाउंडेशन पे न्यूटन gave his laws of motions. ओके, आप सब लोग जानते होंगे न्यूटन के थ्री लॉज ऑफ मोशन है। ओके, सो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। ओके, और एक चीज मैं आपको बताता हूँ, देखो ये एग्जांपल हमने बॉल का लिया है, आपके टेक्स्ट बुक में एक पेपर एयरप्लेन का एग्जांपल है। ओके, कैसे होता है पेपर एयरप्लेन, I'm sorry, please bear with my drawing skills. कुछ ऐसे ही होता है पेपर एयरप्लेन, ठीक है। तो पेपर एयरप्लेन का एग्जांपल लिया है कि ये ज्यादा दूर नहीं जाता, पेपर बोट का एग्जांपल दिया है, ओके, ये भी ज्यादा दूर नहीं जाती है। द सेम थिंग, द प्रिंसिपल इज सेम कि एक्सटर्नल रेजिस्टिव फोर्स की वजह से ये लोग रुक जाते हैं। ओके, तो एग्जांपल्स डिफर हो सकते हैं लेकिन कंसेप्ट सेम। ओके, तो हम लोग थे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। तो न्यूटन सर ने तीन लॉज ऑफ मोशन दिए और आपको ऑलमोस्ट हर चीजों में आपको ये तीन लॉज ऑफ मोशंस दिखाई देंगे। ओके, ये इतना इम्पोर्टेंट चीज है ना न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, आपने 9th क्लास में भी पढ़ा होगा, आई थिंक 10th में भी पढ़ा होगा, यूज किया होगा। लेकिन ये चीज इतना इम्पोर्टेंट है कि आपको ग्रेजुएशन के बाद भी आप कोई इंटरव्यू दोगे तो उसमें आपको ये चीज पूछेंगे कि न्यूटन के तीन लॉ बताओ। बस थोड़ी सी लेवल हाई होंगी, थोड़े और कुछ क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं, लेकिन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज यूजिंग, अगर आप ये लॉज अभी सीख गए तो आपके, अगर आप लोग इंजीनियरिंग करते हो या कोई भी स्ट्रीम लेते हो जिसमें मैकेनिक्स हो, तो पूरा मैकेनिक्स आपका न्यूटन्स के लॉज पे ही चलेगा। ओके, सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, सो बी वेरी अटेंटिव वाइल लर्निंग दीज लॉज। ठीक है, तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ,
तो अभी हो रहा है अपना चैप्टर शुरू, ठीक है। ये बेसिक अपना एरिस्टोटल्स पॉलिसी से अपना एक्चुअल चैप्टर शुरू हो गया, ठीक है। यहाँ से ये बैकग्राउंड था अपने चैप्टर का, और यहाँ से चैप्टर शुरू हुआ। पहले जो थे बस रिकैप था, ये बेसिक हमको पता होने चाहिए टू कोप अप विद द न्यू कंसेप्ट, ओके। सो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। सो न्यूटन सर ने कहा कि एवरी इनएनिमेट ऑब्जेक्ट continues to be in its state of rest or uniform accelerated motion unless and until it is acted upon by an external unbalanced force, ठीक है। लिख लेते हैं पहले, then we'll try to understand, okay। Every inanimate object continues to be in its state of rest or of uniform accelerated motion unless and until it is acted upon by an external unbalanced force। तो ये डेफिनेशन रट्टा मार लो, मग दिस अप, जैसे मैं लिख रहा था काफी सारे लोगों ने इसको याद कर लिया होगा, इट इज वेरी नाइस, ठीक है। तो अभी एक्सप्लेन करता हूँ मैं स्टेटमेंट कहना क्या चाहता है, ठीक है। व्हाट न्यूटन इज ट्राइंग टू से इज दैट एवरी इनएनिमेट का मतलब क्या होता है, बेसिकली नॉन लिविंग लिविंग, ओके। नॉन लिविंग थिंग्स जो खुद से मूव नहीं हो सकते, जैसे ह्यूमन बींग्स खुद से मूव हो सकते हैं, ओके। इट कैन प्रोवाइड एंड move by itself। तो every inanimate object continues to be in its state of rest। तो वो रेस्ट में मतलब इटर्नली रहेगा, या फिर वो अपने यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन में इटर्नली रहेगा अनलेस एंड अनटिल इट इज एक्टेड अपॉन बाय एन एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स। तो उसी स्टेट में वो रहेगा जब तक उस पर एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स नहीं आता, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं, मान लो ये बॉल है, दो केसेस है, उन्होंने कहा है आइदर रेस्ट में रहेगा या फिर यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन में रहेगा, ठीक है। दो केसेस लिखते हैं, ये बॉल है, ओके। तो ये बॉल जो है मास m है, ले लो, इसका भी मास m है, ठीक है। बॉल क्यों लेना है सर, क्योंकि मुझे फुटबॉल बहुत पसंद है, इसलिए बॉल एग्जांपल इज द बेस्ट फॉर्म, ओके। इट सूट्स मी वेरी वेल, ओके। तो इसका मास m है और ये है इनिशियली इसकी वेलोसिटी 0, तो ये रेस्ट पे, ठीक है। और ये इसको कुछ एक्सेलरेशन है, केस 2, ये केस 1 है, ठीक है। मान लो ये केस 1 है, केस 2 है। सो केस 1 में उन्होंने क्या कहा कि आइदर इट विल रिमेन इन रेस्ट और इन केस 2 और इट विल हैव सम एक्सेलरेशन। कोई एक्सेलरेशन है a मान लो, ठीक है। तो इसका एक्सेलरेशन है a, इनिशियल एक्सेलरेशन। सो इन केस 1 इट विल रिमेन इन रेस्ट अनलेस एन एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स F acts on it। अभी एक्सटर्नल का क्या मतलब है, इंटरनल खुद से तो फोर्स देगा नहीं, इनएनिमेट है, नॉन लिविंग है। एक्सटर्नल का मतलब है बाहर से कोई फोर्स देगा। अनबैलेंस मतलब क्या, देखो ये F यहाँ से मैंने दिया, यहाँ से भी F दिया, तो ये फोर्स तो बैलेंस हो गया, ठीक है। तो बैलेंस फोर्स देंगे फिर भी ये तो मूव करने नहीं वाला, ओके। दैट इज व्हाई इफ वी प्रोवाइड एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स ओनली ऑन वन साइड, अंटिल देन अगर ये फोर्स अप्लाई किया तभी तो बॉल आगे मूव करेगा, अगर नहीं किया अप्लाई, okay, then it will remain to stay in the state of rest, right। Similarly in this, if it is moving in some acceleration, ठीक है, कोई acceleration में already move कर रहा है,
अगर इसको एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स नहीं लगाया गया, ओके, तब तक, जब तक उसको हम एक्सटर्नली अनबैलेंस फोर्स नहीं लगाते तब तक वो क्या करेगा, उसी एक्सेलरेशन में दौड़ता रहेगा, राइट? सो दिस इज व्हाट न्यूटन इज ट्राइंग टू से. सो एन ऑब्जेक्ट विल ट्राई टू स्टे इन रेस्ट until an external unbalanced force is applied on it, or it will try to stay in the in motion unless an external unbalanced force is applied upon it. Okay, it is very easy to understand. Okay, so हाँ, और एक चीज मैं आपको बताता हूँ. ये चीज आपको एक्चुअली बताना पहले रह गई. हम लोग जब फाउंडेशन स्टडी कर रहे थे ना इसका, ये अरिस्टोटल फॉलिसी, फिर गैलीलियो ने क्या कहा, ठीक है, तो ऐसे होता है ना, हम लोग भी ये देखते हैं. अभी आपको क्वेश्चन होगा कि सर ये तो फंडा फिर गैलीलियो का था, सो गैलीलियो शुड बी दी, यू नो, ही शुड हैव क्लेम्ड और पीपल शुड हैव क्लेम्ड फॉर हिम कि ये लॉज ऑफ मोशन तो गैलीलियो लॉज ऑफ मोशन होने चाहिए क्योंकि ही गेव द आइडिया. बट इट इज नॉट लाइक दैट सर. देखो, एक कंसेप्ट और एक आइडिया, इट इज सेड आइडियाज आर चीप, एग्जीक्यूशन इज इम्पोर्टेंट. ओके, तो आइडियाज कोई भी प्रपोज कर सकता है, लेकिन उसको फुल प्रूफ डॉक्यूमेंट करना और रिकॉर्ड करना, एविडेंट करना, उसको भी बहुत इंपॉर्टेंस है. ठीक है, मेक इट फुल प्रूफ. अभी इसमें गैलीलियो के थियरी में, हाँ, एक अच्छी थियरी थी इंडक्शन की, मैथमेटिकल इंडक्शन से उन्होंने बताया कि कैसे एरिस्टोटल फॉल्स है, लेकिन उन्होंने सिर्फ ये चीज बताई कि हाउ इज एरिस्टोटल रॉन्ग एंड हाउ एम आई राइट. कोई इक्वेशंस नहीं, कोई फुल प्रूफ थियरी नहीं, कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं, कोई एक्सपेरिमेंटेशन नहीं. ठीक है, सो दिस इज व्हाट न्यूटन डिड. ओके, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन. ओके, सो दिस थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. आपने बहुत सारी चीजें ऐसे सुनी होंगी कि जो अभी जो भी साइंटिफिक रिसर्चर्स है और जो भी हम लोग क्या कहते हैं, एक्सियम्स और assumptions हम ले रहे हैं, दिस वाज ऑलरेडी कॉइन्ड बाय द इंडियन पीपल, है ना. जीरो का इन्वेंशन हमने किया था, एंड देयर वर मेनी थिंग्स दैट algebra, ज्योमेट्री, ये सब हमको पता था, ट्रिग्नोमेट्री, वी ऑल न्यू दिस थिंग, कैलकुलस भी हम जानते थे, इट्स रिटन इन द शास्त्र. बट इसको मेथडिकली लोगों के सामने रिसर्च पेपर में प्रेजेंट किया यूरोपियंस ने, वेस्टर्न पीपल ने. दैट इज व्हाई दे क्लेम टू हैव डिस्कवर्ड इट. ओके, सो the ideas, okay, it is good to come up with an idea, but the execution is also important, how you put forth your idea. Okay, so that is why Newton is the, I can say, father of physics, because he systemized and presented the laws of physics. दो बहुत सारे उनके अप्रेंटिस थे या उनसे पहले जो प्रीडिसेसर्स थे, उन्होंने ये कंसेप्ट्स दिए थे, लेकिन न्यूटन ही वो थे जिन्होंने सिस्टमैटिकली सब कुछ प्रेजेंट किया and full proof way में present किया. Okay, so that is why we are studying Newton's laws of motion and not some other Galileo's laws of motion. Okay, so I think we'll stop here for today. We'll stop here with the first law, और अगले laws हम लोग आगे के lectures में देखते हैं. This is enough for one class. Okay, and I'll give you fitting homework for this. Okay, बहुत सारी चीजें हमने सीखी. I hope you enjoyed the class. और किसी को अगर कोई डाउट्स हो, प्लीज पर्सनली मैसेज मी ऑन व्हाट्सएप एंड विल गेट अलॉन्ग विद इट. अगर डाउट ऐसा हो कि आपको क्लास में एक्सप्लेन करना पड़े, आई टेक इट इन द नेक्स्ट क्लास, और एल्स आई विल एक्सप्लेन टू दैट पर्सन पर्सनली ऑन व्हाट्सएप. ओके, थैंक यू वेरी मच, दैट्स माय टाइम, हैव अ गुड डे.